جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر جاوید صاحب، سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ انتظامیہ اور ریلیف پہنچانے والے سارے ہی پینک میں ہیں کہ ان سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہاؤ وی فیل مینیج دس فلڈ سچویشن. اور فلڈ پیچھے سے دستور جاری ہے، مزید ایک ریلا جو ہے 5 دن تک پہنچنے کے لیے. ریپیٹڈلی عدنان، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آفت ناگہانی ہے، اور جو آفت کا جو سکیل ہے وہ اچھے بھلے عقل مند آدمی کو بھی جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے نا اوور ویلم کر دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ خالی ہمارے ہاں ہی اتنا عذاب نہیں پڑا ہوا. آج ہی ہمارے پاس 2 اہم ڈیولپمنٹس اور ہیں جو ظاہر ہم فوراً اس وقت کو نہیں، ہمیں اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. ہم پہلے اپنی آفت کا ذکر کریں گے تو پھر دنیا کی خبر لیں گے نا. دوحہ پر اسرائیلی حملہ، اور نیپال میں وزیر اعظم کا فرار ہو جانا، اور ایک عوامی تحریک چل رہی ہے اس وقت، تو ہم یقیناً اس کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جلال پور پیر والا سے تازہ ترین کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا ہم نے کچھ پہ میں نے اپنے طور پہ بھی ریسرچ کر کے وہ کچھ باتیں میں ڈسکس کروں گا، لیکن ہمارے پاس کچھ شارٹس بھی ہیں. چوائس آف ریڈی ہیں تو ہم سنا دیتے ہیں کہ وہاں کیونکہ پوری تحصیل ڈوبی ہوئی ہے، پوری کی پوری تحصیل 70% جو آبادی تھی اس تحصیل کی وہ ڈوب گئی. وہاں ریلیف کیا ہے، لوگ ریسکیو ہو رہے ہیں نہیں، اور لوگوں کے مسائل ان کی زبانی، اور کوئی رپورٹر نہیں گیا. میں نے ایک بندے کے پاس بھیجا اور کہا کہ، اور بائی دا وے یہ بہت ساری رپورٹ جو ہمارے پاس آئی ہیں ساؤنڈ بائٹس، ان میں سے بہت ساری ساؤنڈ بائٹس کو فساد خلق کے خوف سے میں نے آن ایئر جانے سے روکا. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. جتنا ہم کر سکیں وہ ذرا سن لیجیے. نہ سارے بال کوئی چاڑے نہ سارے گھر تڑ رہی ہے. اسا کہڑے پاس ونجی سیج تے روڑے کڑے سے کوئی سنتا ہی نہیں. کہڑے ونجی جانور کیا شہر ہو گئے کوئی شے بچی کا ہر تے لڑ گئے، سارے بال لڑ گئے، سارے پریشانیاں سا گزار جائیں، ساری مدد کیتی ونجے. سارے بڑے چھوٹے بزرگ ہیں، بال ہیں نکے نکے، وقت رہے تو بے ہوش ہیں، بیمار تھے پین. ساری مہربانی کوئی تھے ونجے ایسا فجری نے صبح دے ویلے دے آئے وجہ سے ساری کوئی نہیں سنتا. یہ یہاں پر جو ہے نا عوام اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کام کر رہی ہے، اور مسلسل 3-4 دنوں سے عوام یہاں پر لگی ہوئی ہے، اپنا پیسہ لگا رہی ہے، اپنی جیب سے پیسہ لگا رہی ہے. انتظامیہ یہاں پر مکمل طور پر سوئی ہوئی ہے اور یہاں پر کوئی نہیں ہے. یہاں پر پرسانی حال ہے، عوام جو ہے مکمل طور پر یہاں پر پریشان ہے. اپنے تحت آپ کام کر رہی ہے، ایم پی ایم این اے اور جو ہے یہاں کا انتظامیہ جلال پور کی ہے، صوبائی انتظامیہ ہے، مکمل طور پر سوئی ہوئی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کرینیں لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پر اس طرف جو کرینیں لگائی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ اکٹھا کر کے یہاں پر کام کر رہے ہیں. اصل مشین خود لے کھڑے چندہ اکٹھا کر کے شہر جو لوگ چندہ دیندے پہ اپنے بستے جو اکٹھا کر کے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے پہ. کوئی سرکاری نمائندہ نہیں ہے، نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے، کوئی سارے نال تعاون نہیں کیتا. لہٰذا سارے نال تعاون کیتا ونجے بہو ایسا پریشان ہے، سارے شہر کو بچایا ونجے. اور رات ڈی ہک کر دے، نیندر حرام کر دے، اتنا کنے پارا ڈینن بھی کہیں پاسو لیک نہ تھی وے. جی میں کوئی لیک تھی فوراً ہوں والے بندے اتنا سارے پہنچ وینن اور انہیں چندہ کٹھا کرتے ساری اپنی مدد آپ دے تحت ایسا کرنے پہ ہیں. سارے کو نہ کوئی کمیٹی ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی اے سی صاحب پوچھے، کوئی سارے کو معلومات کرنے کی تھی. اسا ہی ٹائم تو نہیں وسطی اپنی نماری چک 84 کو بچے ہی کھڑے ہیں. میری عمر پر روڈ تے جگہ ہے، ٹھیک ہے. ریسک والے کو فون کیتے سے ریسک والے کوئی ہیلپ کرنے کیتے، انہیں سارے کو اپیل یہ کی ہے کہ 10,000 روپیہ دیو اسا تارے تے بندے کٹے. ٹھیک ہے، بندے اتنا راشن چلاون اسا راشن منگے، سا کو راشن نہیں دیتا. پانی منگے تھے، پانی کیا نہیں دیتا. ساری حکومت کیا کرے نہیں پی سا کو ہی شاید سا کو مطالبہ دیتا ونجے کہ حکومت اندی اتنا صرف ساری ویڈیو بنا گئی، سارے بالیں نہیں بنا گئی، اتنا اگر آئے نمائش بناتے گئے. یہ تو بیٹھ کے جتے رولے پیسے اتنے رولے پیسے حد کل زیادہ علاقے تھے. پانی او ہے تیرے سارے تھلے سے چڑھ گئے، کمرے ڈھائے گئے، سارے دانے رول گئے، آٹا لوٹ گئے. 60 ہزار منگے نے جڑے مریم نواز کشتا بھیجے نے پرائیویٹ کرے اے سارے کو پیسے منگنے نہ سکتے تو سب دریا تو پیسے کہنے لیتی بیٹھے جو. سر یہ وہاں کی گراؤنڈ پوزیشن ریسکیو کے لیے جو لوگ پہنچ گئے وہ اب اس انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ، میرا خامن، میرا بھائی، میرا باپ جو سیلاب میں گھر کی چھت پہ بیٹھا ہے وہ موت کا انتظار کرے کہ کشتی کا انتظار. ہاں، لیکن جیسے کل بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ کم از کم ہم نے جب اندازہ لگایا تھا کہ یار آنے اور جانے کے لیے 3 گھنٹے درکار ہیں.
कश्तियां कम हैं, टोटल resources कश्तियाँ कम गालिबन हैं। 6 भी नहीं हैं, कम है और कम से कम 100 से 150 तो कश्तियाँ दरकार हैं। तो वहाँ का एक अच्छा, इस और- दौरान जैसे तुम्हें खुद, किसी और की तो बात छोड़ो, तुम अपने जानवर जब बचा के लाना चाह रहे थे तो तुम्हें एक कश्ती वाले ने, प्राइवेट कश्ती 1000 वाले ने, रुपया फी उसने डंगर। कहा कि 1000 रुपया फी डंगर, और वो भी क्योंकि आप जानने वाले हैं। और चूंकि आप जानने वाले थे, ठीक है ना। अब ऐसे हालात में यकीनन मैं दोबारा कह रहा हूं, इस हुकूमत और उस हुकूमत का सवाल नहीं है, ये तो डिजास्टर का वक्त है, लेकिन सबको सवाल deliver ये करना है कि क्या वाकई फ्लड मैनेजमेंट, एक बात, और दूसरे सैलाबी पानी में महसूर अफराद ये महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए कोई ना कोई इदारा जो है वो हर चीज छोड़कर पूरा फोकस करने की कोशिश कर रहा है कि यार कैसे उन पे आई मुसीबत को कम से कम तर किया जाए। ये है असल पैगाम जो हम देना चाह रहे हैं, और यूं महसूस हो रहा है कि ये पैगाम इन लोगों तक नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं सही जा है रहा, ना? नहीं जा रहा। अब ये तो आपके शहर का आलम हो गया है। अब हमारा बहुत ही कदीमी शहर है मुल्तान, और इतना कदीमी शहर है कि एक ज़माने में मेरे आबाई शहर लाहौर को यके अज मुज़ाफ़ात मुल्तान कहा जाता था। अच्छा, यानी कि एक मुज़ाफ़ाती एक शहर है मुल्तान का। नहीं, लाहौर को कहा जाता है। लाहौर को यके अज के मुज़ाफ़ाती शहरों में से एक है। अब उसको बचाने की बातें हो रही हैं, तो वहाँ वो भी पे नीचे है, दरियाए चनाब के बेड से मुल्तान शहर नीचे है। दमदमा अब ये ऊपर है, है बाकी शहर नीचे। कि उसको भी शहर को बचाने की, और जाहिर है उसकी आबादी भी बहुत बड़ी है, जलालपुर से तो कहीं ज्यादा हाँ है। हाँ, जिला है, ठीक है। फिर ये कि जो इसकी अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत है इस शहर की, तो इस शहर को बचाना लाजमी है। उसके लिए सुबह से, बल्कि कल रात से इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद इस शहर को बचाने के लिए इससे पहले एक शेर शाह बंद नाम का आता है, उसमें शबाब इसके डाला बाद जाएगा, सर मुल्तान शहर क्रॉस करके आता है, आता है, ताकि वो यानी प्रेशर कम हो सके, पीछे कम हो सके। ठीक है ना जी। अब मुझे जो आखिरी बात की है मुल्तान 3-4 लोगों से, सर, और जो इन मसाइल को समझते भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी मुल्तान से इस वक्त 5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। ये रेला जो है ये परसों की निस्बत का लफ्ज इंपॉर्टेंट है, सर, कम लग रहा है इसकी शिद्दत। और सतह समंदर से जो यानी पिछला शदीद वाला रेला था वो 414 फुट बुलंद था, लेकिन ये रेला जो है ये अभी 414 की हाइट तक फुट नहीं की पहुंचा। हाइट तक नहीं पहुंचा। ठीक है। अल्लाह करे कि अगर ये ऐसे ही रहा तो शायद शेर शाह बंद को तोड़ने की जरूरत न पड़े। अब इसमें एक और, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसे तोड़ने की जरूरत पड़ गई, हाँ, तो आप आम हमारे समझाने वालों को कुछ शहरों के नाम लेकर ये समझा दो सर। कि उनकी कौन सी नवाही बस्तियों के रकबे जो हैं वो सैलाबी पानी की नजर हो सकते हैं। मैं वो बताता हूँ, लेकिन जो आपने बात की है ना, तो सब इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा। अभी एसएच चौधरी साहब ने मुझे भेजा है कि जो है ना, ये NDMA की तरफ से खदशा जाहिर किया गया है कि सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर तूफ़ानी बारिशों का खतरा भी मौजूद है। आप बजा फरमा रहे हैं कि कुछ इंच कम है सतह समंदर से लेवल, लेकिन डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि हेड मोहम्मद वाला, जो कि मुल्तान की बैग से होता हुआ चनाब आता है, तो जो हिफाजती बंद है उसको हेड मोहम्मद वाला बंद कहते हैं, तो उससे उस पे कुछ ही इंच नीचे है वो जो चनाब का पानी गुजर रहा है। अगर खुदा न खास्ता बारिशें तेज़ हुई तो वो कुछ इंच जो कम है वो खुदा न खास्ता बढ़ भी सकते हैं, तो अल्लाह हमें महफूज रखे। लेकिन मुल्तान में बारिश की पेश कोई है ये जो अभी ताज़ा अपडेट आई है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं, अगर शेर शाह वाला बंद तोड़ा जाता है तो इससे पहले भी पानी उन इलाकों में दाखिल हो चुका है जो कि शेर शाह से निकलते हैं सर, और खानपुर काजियाँ एक बड़ा एरिया बनता है जो कि आमों के बाग के लिए बड़ा मशहूर है। इम्पोर्ट होता है वहाँ का बाग, आम जो है वो तहसील शुजाबाद बनती है, उसमें पानी मौजूद है। अच्छा, वहाँ की वो एक वादी की तरह है, वो जो खानपुर काजियाँ है वो बहुत नीचे करके है,
सतह वो जो बेड है चनाब का उससे बहुत नीचे है और वहाँ पानी कई लाख क्यूसेक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहाँ पे समा सकता है। अब क्योंकि वो ऑलरेडी पानी मौजूद है और उसकी सतह कम हो चुकी है अब, तो वहाँ शेरशाह बंद को तोड़कर पानी का रुख खानपुर, काजियां और शुजाबाद की तरफ मोड़ा जाएगा ताकि एक बाईपास हो, और वो भी शहरों की तरफ नहीं, शहरों की तरफ, बिल्कुल शहरों की तरफ, उनके जो और फिर वो चुनाव हैं और फिर वो चुनाव में दोबारा वापस आ सकता, वापस आ। ये एक प्लान है अगर खतरा हुआ मुल्तान। लेकिन हमारी पहली जो है दुआ ये होनी चाहिए कि या अल्लाह रहम कर हम पे, और मुल्तान में बारिश न हो तो शायद शेरशाह बंद को भी तोड़ने की जरूरत न पड़े। अल्लाह भला। अब आ जाए, ये तो मुल्तान की अपनी सूरत है। ये तो बात, जब मैं आने लगा था तो मैंने ताज़ा तरीन रिपोर्ट उनसे ली जलालपुर पीरवाला से। वहाँ पर एक इलाका है जो शहर की बैक साइड बनती है टूवर्ड जनूब, उसको हफीज की कोठी का एरिया कहा जाता है। तो उसके पीछे एक बंद है जो कि जिसमें सतलुज और चनाब और पांचों दरियाओं का पानी मिक्स होकर रिवर्स मार रहा होता है। तो वो कह रहे हैं कि शायद वहाँ से बंद तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है, अभी ये अनाउंस नहीं किया गया। शहर को बचाने के लिए इकदामात नहीं हो रहे, वहां से तोड़ा गया तो पानी शहर में आ जाएगा। अगर खानबेला साइड से टूवर्ड, मतलब अगर मगरिब से तोड़ा गया चनाब की साइड से, फिर भी शहर डूब जाएगा। अब वहां पानी की सतह ये है कि वो आखिरी हदों को छू रही है। मजीद जो 5 लाख क्यूसेक का पानी आ रहा है क्योंकि आगे नहीं जा पा रहा, तो पानी की सतह बुलंद होगी तो अल्टीमेटली शहर में पानी दाखिल होने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। शहर में, बाजार में आज भी मस्जिदों में ऐलान होता रहा कि अपना सामान यहाँ से उठा के, इस शहर की बात कर रहा हूँ, शहर बजाते खुद शहर का जिक्र हो रहा है, क्योंकि वहाँ पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे। उसकी भी एक वजह है, अगर मैं चाहे तो मैं आप जी बताएं यार बाबा, हम लोगों को एजुकेट करने। मैंने जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे भी इसकी तस्दीक की, जो इरिगेशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी इसकी तस्दीक की। सतलुज का पानी जो शहर के जलालपुर शहर की बैक साइड से गुजरता है और एक इलाका है जिसको दराबपुर कहते हैं, दारेपुर वहां कहते हैं, नाम उसका दराबपुर है। वहां उसके पास दरियापुर होगा ना, तो दरआबपुर है, वही ना, तो यानी पानी में हम सरायकी पानी का दरवाजा, हम उसे दारेपुर कह देते हैं, वही ना, नाम उसका दरआबपुर है। ठीक है। तो वहां ये पांचों दरिया इकट्ठे होते हैं एक्चुअली, और फिर टूवर्ड्स हेड पंजन 30 किलोमीटर इकट्ठे ट्रेवल करते हैं। जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ये शुरू से रिवायत है कि पानी रिवर्स मारता है, क्योंकि सतलुज का पानी जब भरपूर आता था तब भी कम होता था, क्योंकि 2 दरियाओं का पानी था, ब्यास का और सतलुज का। चनाब में 3 दरियाओं का पानी था, रावी, जेहलम और चनाब का, तो ये बड़ा होता था। तो ये शुरू से हजारों सालों से यही है कि वो रिवर्स ही मारा करता था। तो उसका हल क्या था? उसका हल ये था सर कि एक जगह थी जिसको उर्फ आम में विहाड़ी वाला पुल कहा जाता था। विहाड़ी वाला पुल ये जगह होती थी कि जब ये दराबपुर पे दोनों दरिया मिलते थे, कुछ पानी आगे निकल जाता था, कुछ पानी फिर जिस तरफ से सतलुज बह रहा है उसके पैरेलल वापस रिवर्स मारता था। तो उसमें कुछ गांव देहात हैं जिसमें बहादुरपुर भी शामिल है, नुराजा भुट्टा भी जिसमें शामिल है, कन्नू की बस्ती शामिल है, लांग बस्ती शामिल है। तो ये सारे इलाके उसमें दरिया सतलुज, चनाब सबका पानी मिक्स होके वहां उस कैचमेंट एरिया में स्टे करता था। जब अगला पानी निकल जाता था तो ये वापसी, ये भी निकल के दोबारा पंजन की तरफ रुख कर लेता था। आज सूरत हाल ये है कि उन सारे गांव में लगभग 30% रकबा मेरे अंदाजे के मुताबिक गैर आबाद है, वो रेतला इलाका है आज भी कुछ रकबा उसमें से आबाद हो गया, आबादी उन इलाकों में कम है। अब पानी उस तरफ नहीं जा रहा, उसकी वजह पूछना कि अब क्यों नहीं जा रहा। यकीनन ये तो एक बहुत बड़ी अजीब सी बात है कि अगर रकबा इतना पड़ा हुआ है और इंसानी आबादी भी कम है, तो पानी का रुख तो उस तरफ मोड़ना चाहिए। तो उसका लिए हुआ क्या, जलालपुर से इन्होंने एक रोड बनाया जो कि सतलुज के ऊपर से होता हुआ उच्च शरीफ कनेक्ट करता था। अब क्योंकि वो बड़ा बाईपास था तो एक बंद भी बन गया और उच्च तक कनेक्ट भी हो गया जलालपुर। उसके अंदर ना एक पुल रख दिया गया टेक्निकली, ताकि जब भी सैलाब आए तो उस पुल में से पानी गुजरे। तो 1-2 साल तो ये होता रहा कि उसमें से पानी गुजरता था तो सैलाबी कैफियत नहीं होती थी, उस सारे कैचमेंट एरिया में जमा हो जाता था। पिछले 10, 11, 12 सालों से वो बंद कर दिया गया, वो पुल बंद है। मैं चेक करके बैठा हूं, पक्की बात है सर, मुझे कल भी पता था, मैंने उसको रीचेक। कौन अहमक आदमी यार ये फैसला कर सकता है कि अगर बाकायदा एक पुल मौजूद और दरिया की तारीख है कि वो अपनी गुजरगाह नहीं भूलता, वो वहां चला जाता और ये कच्ची आबादी जहां पर के अभी भी बकौल तुम्हारे ज्यादातर रेतला इलाका है और आबादी बहुत ही कम है। आबादी भी कम है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये नहीं कि है नहीं है, लेकिन कम है, लेकिन कम है निस्बतन। यानी
तो अब एक बड़ी एक वाज़ेह चीज, दूसरा बात वैसे ये है- मजेदार बात आपको बताऊं कि कागजों में ये जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, मेजॉरिटी रकबा जो है वो दरियाई रकबा है जो लोगों ने अपने नाम करवा लिया हुआ है। बाबा वही बात है ना, देखो ना, अब शहर सुतलज को जब हमने सिंतास मुआहदे के तहत भारत के हवाले कर दिया, तो हमने उस वक्त उसके बाद ये सोचा भाई ये 3 दहाइयों बाद ये पहली मरतबा सुतलज इस तरह अपनी आया है ना गजबनाक हालत में, वरना तो कभी कभार ये कभी आया तो भाई जरा बहुत ही ज्यादा, जब अगर वहां कंट्रोल नहीं कर पाए भारत वाले तो आ गया कुछ यानी सैलाब, लेकिन इस नौयत का, इस शिद्दत का नहीं आया। सब जहाँ 5 दरिया मिलते हैं वहाँ आपको कुछ मैयर तो रखने चाहिए ना, कि यार नहीं आया बट मैयर तो में फिर भी रखते होना। हुए ये बात तो पहले दिन रखनी चाहिए थी कि भाई उसूली तौर पर ये दरियाए सुतलज की गुजरगाह रही है और ये जरूरी नहीं है, और खास तौर पर जबकि माहौलियात के माहिर जो हैं गुज़श्ता 10-15 साल से मुसलसल हर साल रोए चले जा रहे हैं कि जी अब फ्लैश फ्लड्स आया करेंगे, और जो मौजूदा डैम हैं जितने भी बने हुए हैं हमारे या इंडिया के, हाँ। ये उनकी जो गुंजाइश है जखीरा करने की पानी की, कैपेसिटी से ज्यादा उसके कैपेसिटी को पार कर जाया करेंगे। 3.5-4 दिन हो गए ना, बल्कि 4 दिन हो गए, हफ्ते रात से शुरू हुआ, आज भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये मैं बड़ा वही तो रो रहा हूँ। इट्स अ सीक्रेट। अच्छा वहां जो पुराने लोग हैं ना, आज वो कह रहे हो विहाड़ी तोड़ो, विहाड़ी का पुल खोलो, सड़क तोड़ दो या पुल खोल दो, एटलीस्ट दरिया का पानी उस तरफ तो जाए यार और खुदा शहर का बसे। वास्ता है, समझ नहीं आती हमारे इंतजामिया वालों, हमारे फ्लड मैनेजमेंट करने वालों, अल्लाह का वास्ता है फॉर चेंज आपने पूरी जहानत लगा ली। कुछ अंग्रेजी में कहते हैं रस्टिक विजडम, ये इज्तमाई यादाश्त और इज्तमाई बसीरत, उसको आजमा के देख लें पर यार। नहीं कर रहे ना सर। अब मसला ये है कि मैं ब्यूरोक्रेसी जो है फिर मुझे नाम लेना पड़ता है। अब ये नहीं कि सारे बुरे हैं, मैंने जानवरों का जिक्र किया था नुसरत साहब, अब मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए उनका या नहीं, लेकिन उन्होंने जितना अच्छा काम किया उन तक ये इतला पहुंची कि यार मुल्तान की तहसीलों में तो एक थे डॉक्टर गुलाम नबी साहब, एक थे डॉक्टर महमूद इजाज साहब, एक लाइफ स्टॉक के एक डायरेक्टर साहब हैं, एक एडिशनल डायरेक्टर। अब ऐसे लोग भी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं कि जिन तक ये इतला पहुंची उन्होंने जानवरों के लिए जितना वो कर सकते। मैं हम ये नहीं कहते कि सारी ब्यूरोक्रेसी एक जैसा नहीं सवाल ही बट यार आप एटलीस्ट के आज की डेट सबसे ज्यादा अगर बुरे लोग हैं जी तो मेरे शोबे में हैं साहब। हाँ मतलब ठीक है, हर शोबे में होते हैं, बट आज फिर शहर को वो जो पानी खड़ा है वहां पे जलाल, वो शहर के लिए खतरा है। 5 लाख आप कह रहे हैं मुल्तान से और जा रहा है, जो आप ठीक कह रहे हैं, तो आप उस 5 लाख को कहाँ मैनेज करेंगे? उसको लिए वो क्योंकि आगे चनाब पंजन से आगे पानी जा ही नहीं रहा। नहीं, लेकिन बजनत में भी कुछ मसला होगा, उसकी कैपेसिटी तो आपने बढ़ा दी है, लेकिन अब पानी की जो मिकदार पीछे बढ़ रही है वो उससे भी ज्यादा है, उससे फिर आपको पंजनत को भी मैनेज करना होगा। अब पंजनत का भी मसला है सर, आगे दरिया सिंध में भी पानी आ चुका है। Exactly. जो आप बात कर रहे थे ना अपनी टेक्निकल बात की, सतह समंदर से बुलंदी देखी जाती है। जी हाँ। जब वो वाटर लेवल बढ़ता है तो मैं पीछे सारा पानी नहीं छोड़ सकता। Exactly. मुझे कम पानी छोड़ेगा, क्योंकि पानी ऊंचा है। जब पानी ऊंचा है मैं पूरा हेड खोलूंगा तो वापस रिवर्स मारेगा और स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। तो टेक्निकली भी चीजें वहां पे मुख्तसर तरीन अल्फाज में हम आसानी ये कह सकते हैं कि जी पंजनत अपनी गुंजाइश के ऐन मुताबिक फिल वक्त पानी नहीं गुजार सकता, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि अगर वो गुजारेगा तो सतह समंदर से बुलंद जो सिंध का पानी है वो पंजनत के छोड़े पानी को रिवर्स, जिसको इरिगेशन की जुबान में हेड कहते हैं, वर्किंग हेड कहते हैं, उस ढांचे को, पंजनत के ढांचे के लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अगर आज शेर शाह को तोड़े बगैर सैलाबी रैला जो है मुल्तान से खैर आफियत से गुजर जाए तो शायद कुछ, लेकिन आगे आपको हेड पंजन के पास जलालपुर में फ्लड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसके बावजूद आपको फ्लड मैनेजमेंट करना पड़ेगी, और ये जो इज्तमाई बसीरत विहाड़ी का जिक्र कर रही है, खुदा रा उस पर गौर कर ली। और ये मैं नहीं कर रहा, उसकी तारीख है बाबा, सतलुज चनाब की तारीख है, ये सिर्फ गौर कर, अल्लाह भला करे, इज्तमाई बसीरत पर खुदा रा गौर कर लीजिए। बस एक ब्रेक ले लें सब।
वेलकम बैक। अच्छा भैया, बात ये है कि मैं नहीं जानता कि आप कितनी मरतबा नेपाल गए नेपाल नहीं गए होंगे। सर। मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, बेतहाशा मतलब, और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें और ये वो, ठीक है जी। वहाँ पर हमने जिक्र किया था कल ही अपने शो में कि भाई नौजवानों की एक तहरीक चल पड़ी है, जिसका मॉडल जो है वो नज़र बज़ाहिर जो है वो अपना बांग्लादेश की तरह का नज़र आ रहा है कि जैसे बांग्लादेश में रजीम चेंज हुई थी। अब इसमें जो गौर तलब बात है, और ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है, कि भारत का रेगुलर और सोशल मीडिया यकसू होकर ये पैगाम दे रहा है कि जैसे ये तहरीक जो है ये भी बांग्लादेश की तरह अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों नाम लिए बगैर पाकिस्तान कहीं तो नाम भी लिया चल भाई, कहीं जगहों पे तो नाम भी ले। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को नेपाल के उस वजीर आजम से क्या स्ट्रेटेजिक खतरा हो सकता है जिसने सारी जिंदगी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में गुजारी, 14 साल तक जो शख्स कम्युनिस्ट होने की वजह से जेल में रहा। ये अलग बात है कि वो बहुत ज़्यादा जाह तलब हो गया था, और इस वक्त जो वहाँ पे हुकूमत बनी हुई थी, क्योंकि इसने तो आज से 5 साल पहले तकरीबन, नहीं 3 साल पहले असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि इसको कोएलिशंस की ज़रूरत होती। ठीक, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियाँ तुमने किस फिरते पे तोड़ी है, ये किस बुनियाद पे, नहीं दोबारा कोई और बना ना पाया, तो ये एक हवाले से वहाँ पे अक़लियती हुकूमत चला रहा था। अच्छा, अक़लियती हुकूमत और कोएलिशन गवर्नमेंट्स में जाहिर है जिसका दाव लगता है, हाँ, तो वो फिर, अब वहाँ पर एक शख्स है, उसका नाम है बुलंदरा शाह। वो एक सिंगर था, और वो रैपर जो है ये साउथ अफ्रीका से, ये जो है ना एक ऐसी वो शायरी का आगाज हुआ था जो गाई जाती है, लेकिन वो अवामी उमंगों की अवामी गुस्से का इजहार करती है। ठीक है। जैसे मिसाल पर हमारे हबीब जालिब होते थे, तो अगर वो रैपर होते तो वो खतरा है जरदारों को करते, ठीक है। अब ये शख्स, इसका नाम है बुलंदरा शाह, लेकिन इसको आम तौर पर बालन शाह कहा जाता है। अब ये शख्स जो है ये 2022 में काठमांडू शहर के मेयर का इसने इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, ठीक। और इसका ये कि एंटी करप्शन इसका दावा था। अच्छा, पेशे के एतबार से या इल्म जो उसने हासिल किया है, तुम्हारे तो पेशे की समझ नहीं आती, लेकिन कम अज कम इसने तुम्हारी तरह इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है। अच्छा, ठीक है जी। जब ये मुंतखब हो गया तो इसने काठमांडू शहर में 2 चीजें करके ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी इज्जत और वक़ार में बेपनाह इजाफा किया। यानी पहले तो बतौर सिंगर मशहूर था, फिर सिंगर और शायर, उसमें इसने 2 काम किए। एक तो ये कि नेपाल में जो कूड़ा क्रिकेट और बेतहाशा होता था, कोई मैं जाता रहूँगा, उसकी मैनेजमेंट, जिसको वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं ना, बहुत जदीद तरीन भाई इसने तर्ज पे की। दूसरा, इसने नेपाल के तारीखी विरसे को जो है बड़े अच्छे अंदाज में, ताकि टूरिस्ट वगैरह आए और उनको यदि इसने प्रोटेक्ट किया, एक अट्रैक्टिव बनाया। लोगों का ये ख्याल है, इसके मुखालिफिन का ये ख्याल है कि दर हकीकत ये बंदा अमेरिका का चहीता है। अमेरिका ये चाहता है कि ये, अच्छा, अब बात यह है कि ऐसा शख्स जो है वो पाकिस्तान के क्या काम आएगा? नेपाल वैसे मारेगा काम? नहीं भाई, आ सकता है। उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इंडिया की। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मेरे क्या काम आएगा एक पाकिस्तानी के तौर पर। ठीक है, इवन इफ आप मुझे बताएं कि ISI के किस काम आए? किसी काम का नहीं, जिसका पूरा लाइफस्टाइल ही और है। नहीं, हाँ, अमेरिका और चीन के माबैन नेपाल के हवाले से, अपने असर के हवाले से कोई ना कोई झगड़ा तो रहता है। दूसरी बात यह है मेरे बाबू, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो,
आज तक मिसाल के तौर पर मिस्र में वो तहरीक चली थी अरब स्प्रिंग, हाँ, आप पुरअमन एहतजाज करते थे। श्रीलंका में ये रिवाज शुरू हुआ कि वो सिर्फ ईवान सदर चले गए थे और वहां उन्होंने उसको भागने को मजबूर कर दिया और ईवान सदर पे कब्जा कर दिया। यहाँ पे इन्होंने जितने भी प्रोमिनेंट सियासतदान रहे हैं कोशिश की है कि उनके घरों में घुसें, एक ही में जलाएं, और एक साबिक वजीर आजम की बीवी जो है वो जल के मर गई है कि उसके घर को जलाया गया। हाँ, अब इस तहरीक का नाम इन्होंने अपने तौर पर तो ये रखा कि जी अपना जन आंदोलन है, जन यानी जनता आंदोलन, बगावत या हंगामा आ रहा है, जो भी कह लो। बगावत उसमें उसके अब मजबूर होकर नेपाली फौज को मुतहरक होना पड़ा है और नेपाल की फौज ने कहा है कि वो नेपाल की खुद मुख्तारी, सालमियत, जोग्राफियाई आज़ादी, कौमी यकजहती और नेपाली अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म रही है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप बखुदा ईरानी अवामी जानों को ज़ाया मत करें, लोगों को, मतलब उन्होंने उनकी भी मजम्मत की है जब हुकूमत ने हाँ ठीक है, यानी एहतजाज, लेकिन वो कह रहे हैं कि यार आप एहतजाज आपने कर लिया ना, वजीर आजम भाग गया, मुख्तलिफ वज़रा अपने घरों से भाग गए, अब आप उनके घरों को क्यों जला रहे हैं भाई? अब बैठ के सोचो कि अब क्या करना है। ठीक है। अब अगर फर्ज करो उन्होंने ना सोची तो दो ही तरीके रह जाएंगे ना, तो मार्शल लॉ लगाएं, कि या तो फौज आ जाएगी खुद, तो या फौज खुद आएगी, वरना एक बड़ा ही कंजर्वेटिव जो रवैया है वो ये कह रहा है कि नेपाल में पहले शाही निज़ाम होता था ना, 2008 में उसको ख़त्म कर दिया गया था, तो उनके में से एक वारिस रह गया है, उसको वापस ला के बादशाह बना दिया जाए ताकि एक इस्तेहकाम की सूरत हाल बन जाए, यानी कि बन जाए कि जी ये बादशाह है, अगर कोई हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही तो उसको हटा सकती। अब इसमें जो असल नफरत जो हो रही है उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर लोगों में लिटरेसी का, तालीम का तनासब जो है वो 71% है, 71% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ज़ाहिर है उनमें से नौजवानों की अक्सरियत है। अब नौजवानों में बेरोजगारी जो है वो 21% है। कितनी? 21%। 21%। करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में ये मुल्क जो है ये 107 नंबर पर है 180 मुल्कों की फहरिस्त में, और ग़ज़ाई अजनास, रोटी की जो कीमत, खाने पीने की, वो 4.69 है। ऐसे हालात में मतलब वहाँ जो एलीट से मारे हुए अंग्रेजी का लोग, एक लफ्ज है, नहीं अंग्रेजी का एक लफ्ज है और इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताने की जरूरत है। नेपो किड्स, नेपो किड्स कहा जाता है, नेपोटिज्म से निकला है, नेपोटिज्म अकरबा परवरी। जैसे मिसाल के तौर पर अमरीका, ये बॉलीवुड में ये जो ये करिश्मा कपूर वगैरह हैं या कपूर खानदान, बच्चे, दादा, उनको नेपो किड्स कहा जाता है। कभी ये चूंकि राजकुमार फैमिली के हैं, एक ही खानदान के, इसी तरह सियासतदानों में तो वो तमाम अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज है। तो इन्होंने सोशल मीडिया पर क्या करना शुरू किया कि इनकी जो औलादें हैं नेपो किड्स, ये बाहर के दौरे कर रहे हैं और वहाँ डिस्को मिस्को हो रहे हैं या गोरियों के साथ अय्याशी कर रहे हैं। जो डिफरेंस था, क्लास डिफरेंस, इनइक्वालिटी, क्लास डिफरेंस, उस क्लास डिफरेंस को इन्होंने सोशल मीडिया की बदौलत हेट में बदल के तो नफरत उगाई है लोगों के दिलों में एलीट के खिलाफ। गवर्नमेंट बेचा ना कि करप्शन है इस मुल्क के अंदर, करप्ट है, उसको बेचा, लेकिन उसका ये तो नहीं किया ना कि जनाब ये जो केसेस हैं 3, इनमें हर सूरत सजा होनी चाहिए, हम बैठे हुए हैं। हाँ, अल्टरनेटिव देते हो ना। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पर तुमने वेहाड़ी की बात की है, आप कहते हैं कि जी इस पे गौर कर लीजिए। हाँ, तो ये तो वो कर रहे हैं जो इनकलाब फ्रांस के बाद उन्होंने किया था। उसका नतीजा क्या हुआ था? ये जो कि बिलाखिर नेपोलियन आ गया था। हाँ,
ٹھیک ہے صحیح ہے. اور نیپولین آپ بادشاہ اپنے نہ ہونے کے باوجود اس نے خود کو بادشاہ ڈکلیئر آپ کر اپنے دیا. گراؤنڈز آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ اپنے گراؤنڈ چھوڑ دیتے ہیں, آپ اخلاقی ایج جو ہے وہ لوز کر آخری دیتے ہیں. پوائنٹ ختم ہو گیا ٹائم. بنگلہ دیش میں ہوا, اسی ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں, نیپال میں ہوا, اس سے پہلے سری لنکا میں ہوا, ساؤتھ ایشیا اب بجائے ان چیزوں پر توجہ دینے کے کہ جی ایسی تحریکیں ان کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا یعنی کہ اپنا کیا لانگ ٹرم پلان ہونا آپ بیٹھ کے جو ہے وہ بھارت سارا اس میں لگا ہوا ہے جی کہ وہ بھارت کے گرد گرا ڈال رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی ملک, خاص طور پر پاکستان پہلے بنگلہ دیش میں وہی کوئی ایک چیزوں کو آرگینک وجوہات سمجھنے کی طرف لے کے چلیں. ریجن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک بریک سے ویلکم بیک. اب صاحب جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ایک رواج بنتا جا رہا ہے, اسرائیل نے بھی ایک اپنا رواج بنا لیا. ارے اسرائیل اور ان میں تو فرق ہے, لیکن ان میں اچھا میں تمہیں اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ نیپالی فوج نے جو ہے وہ خطاب کیا لوگوں سے اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو یعنی فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ کال آف کر دیں, وزیر اعظم چلا گیا ہے اور افواہیں ہیں کہ وہ لوگوں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے وہی بالن شاہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ تمہاری طرح کا انجینئر, کاش کہ تم اس قابل ہوتے, وہ اس کو غالباً وہ جو ہے وہ وزیر اعظم نامزد کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو کمیونسٹ نظریات کی وجہ سے 14 سال جیل میں رہا ہے, اس کو اقتدار ملا تو اس کا انجام کیسے ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے بڑے نغمے گا کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے تو یہ کیا دیں گے نیپال کو, یہ الگ بات ہے. اب آپ اسرائیل اسٹیٹ ہے وہ تحریک نہیں ہے, لیکن اسرائیل ایک ریاست ہے, اور ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ریاستوں کا کام غنڈہ گردی نہیں ہے. اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے منسٹروں کے گھروں میں جا کر بد تہذیبی کی ہے, جلایا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک حوالے سے ملا یہ کم مجرم ہے جتنا بڑا مجرم اسرائیل ہے. او یار میں تو بلکہ تمہاری بات کی تائید کر رہا ہوں, لیکن اگر تم سننے کو تیار ہوگے تو میں تمہاری بات کی تائید بھی کر سکوں گا نا, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اس حوالے سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست نہیں ہے, احتجاجی ہجوم ہے, موب لنچنگ ہے. لیکن یار اسرائیل رائٹ اور رانگ ہم پسند کریں یا نہ کریں, یو آر اسٹیٹ, تو اسٹیٹ کی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ کل یروشلم میں ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا, وہاں پہ جو 2 بندے آئے انہوں نے 3 آئے سر, یعنی 3 بندوں نے, ایک پکڑا گیا غالباً ان میں سے 2 کو اوور کم کر لیا گیا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ جو لوگ بس سٹاپ کوئی تھا اس پہ انہیں فائرنگ کر کے تو قتل کر دی. میری دانش میں وہ ایک غلط واقعہ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کا بدلہ آپ اس سے لیں گے حماس سے, کہ حماس کے رہنما اس طرح لیں گے یار. حماس کو آج کیا تاریخ ہے, 9 ستمبر. 7 ستمبر کو 11:28 کے رات کے ہمارے وقت کے مطابق, وہاں تو دن ہوگا, ٹھیک ہے, جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہر آدمی چاہتا ہے کہ مخفی واپس آئیں, وہ جو ہاسٹیج ہیں حماس کے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو, یعنی غزہ کی جنگ کا. اسرائیلیز ہیو ایکسیپٹڈ مائی ٹرمز, اسرائیلیوں نے میری دی گئی شرائط کو منظور کر لیا ہے. اب حماس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری دی ہوئی شرائط کو قبول کریں. وہ انہی شرائط پر غور کرنے کے لیے حماس کی لیڈرشپ یہاں موجود تھی. یہاں قطر اسی لیے یار آپ کم از کم اتنا انتظار تو کر لیتے کہ بھائی وہ آپ کی بات, آپ کی ٹرمپ کی دی گئی شرائط کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے. IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم بتا دیا نا, ٹرمپ صاحب نے آشیرواد دیا کہ جاؤ, اور یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں جن کو امیر قطر نے جو ہے سونے کا جہاز دیا سر, جہاز دیا, جو وہ کہتے ہیں کہ میں صدارت چھوڑنے کے بعد بھی رکھوں گا. ہمیں توشہ خانہ لگے رہنے. عرض یہ ہے, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ اس وجہ سے جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ یا تو وہ اگر اپنی میٹنگ کر رہے تھے اس میٹنگ کے اختتام پر وہ یہ پیغام دیتے کہ جی ہمیں ٹرمپ کی دی گئی شرائط نامنظور, تو
हाँ तो फिर भी नहीं सर। मैं कहता हूँ फिर सर हैविंग सेड दैट, जो कुछ ईरान में किया इसने, इसराइल ने, जो अब इसने किया, जो इससे पहले गजा में होता रहा, वो यार ये को मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो इस सूरत में तो फिर इस तरह के वाकयात मजीद होंगे ना, जैसे कल यरूशलेम में हुआ है। तो यार अगर आपने इसी तरह करना है और अपने लिए खुद गलत, अच्छा फिर आप कौन से मुल्क की को वायलेट कर रहे हैं? इस खित्ते में, इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में यूएस सेंटकॉम का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ है? यहीं पे तो कतर में। और इस कतर का जो सारा एयर डिफेंस है वो कहाँ है पता है आपको? उसी सेंटकॉम के। वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो आप उस जगह पर, उस मुल्क में, उसका नतीजा ये है कि पहले ही आपको याद होगा कुछ अरसा कबल सऊदी अरब और यूएई ने मिलके इनको जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से उन्होंने इनको किया था। तो आप तो कतर की बारे में मुस्लिम अवाम की अक्सरियत में ये शुकूक व शुबहात बिठा रहे हैं कि जी अल जजीरा और नो अल जजीरा ऐत अंदरों रले हुए ने। सर देखना, अब इस पे भी एक सवाल है ना, आप कितना ज्यादा यानी कि एक बेरहमी और सफाकी के साथ वहां से जो जहाज उड़े, जो अभी तक रिपोर्ट हुए F-35 जो रिपोर्ट हुए ना, भी एयर टू सरफेस हो गया, वो इसराइल सरफेस टू सरफेस भी मारे, तो इनके पास जदीद सिस्टम है जिसको थार्ड शायद कहते हैं, वो डिटेक्ट कर लेता है इनका डिफेंस, वो इंटरसेप्ट कर सकता है दोनों टाइप के मिसाइल को। नहीं हुआ, इट्स मीन कुछ तो था ना सर। यार नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, देखो हमें यही है कि साजिशी थ्योरियों पर वक्त ज़ाया करने की बजाय मैं ये बात तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ कि कतर ने इस हमले को अपनी दाखिली खुद मुख्तारी पर, नहीं वो तो कतर ने कह दिया, कतर स्ट्रांगली कंडेम्ड इजराइल स्ट्राइक ऑन 7 मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं वही एक बैकग्राउंड मैंने इसलिए तुम्हारे सामने वाज़ेह किया है कि मैंने तुम्हें लफ्ज कहा ना शक शुबा, तो आपने हमास को थल्ले लगाना है ना। इसराइल का क्या यही रवैया, कोई दुनिया इस पे बात भी करे, कोई यूएन एक बला का नाम होता है, कोई इंटरनेशनल लॉज यूएन एक बला होती थी है, अब क्या है? अब मतलब अगर यूएन होती तो रूस और यूक्रेन की जंग अभी तक जारी होती, यूएन नाम की कोई चीज होती तो गजा पर फजाई बमबारी अभी तक जारी होती। भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका का जो जी चाहे वो कर रहा है, रूस का जो दिल चाहे वो कर रहा है, इसराइल का जो दिल कर रहा है, और इसराइल का जो दिल चाहे सो ये जंगल का कानून बन चुका है। अब कोई ग्लोबल शेरिफ, कोई आलमी थानेदार नहीं रहा जो कहे कि अदनान और बंदे का पुत्र बन तो सब अकल कर। नो, those days are over and done with. It's everybody is on his own. अब चाइना ने भी जो प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं किया, चंद नहीं, उन्होंने जो डिस्प्ले किया है बाबा, उन्होंने तो बाकायदा अपनी अलायंस दिखाई है। हाँ, डिस्प्ले भी जो इक्विपमेंट किया, एक तो अपनी और एक तो ये दिखाया है कि भाई हमारे पास अगर वाकई लड़ना है तो हमारे पास भी हथियार है, वो अलग बात है। हमास को खत्म करने का जो ये मंसूबा बनाए बैठी है, क्या हमास खत्म हो जाएगी? ऐसे हमास नहीं होगी, कोई और नाम आ जाएगा, कोई और नाम आ जाएगा। अब कल वो जिन्होंने ईस्ट यरूशलेम में जो वाकया किया है, उन्होंने तो हमास का होने का दावा नहीं किया। हमास ने गजा में 4 इजरायली फौजी मारे हैं और वो हालत जंग में है और उसकी वो जिम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं कि हाँ हमने मारे। यूएस की भी एक क्लैरिफिकेशन आई, उन्होंने कहा जी हमें तब बताया गया जब जहाज हवा में थे। खैर यही कहा जाता है, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि वो इस वाक़े के बारे में अपने ख्यालात का इजहार को तकरीबन अब से 2 घंटे बाद करेंगे। लेकिन कुछ आया है अमेरिका की तरफ से? नहीं, अभी तो यही आया है ना कि जी जब फजा में उड़ गया को गाले ऐसा थोड़ी दसीदा होता है। बाबा ट्रम्प का जो दामाद है, नाम है उसका जैरेड कुशनर। कुशनर अपने आबाई घर में जिस कमरे में रहता था, वो कमरा वो शेयर करता था नेतन्याहू के साथ जब नेतन्याहू अमेरिका पढ़ने गया। तब ये गरीब थे, कोई यार ताल्लुकात भी होते हैं। कमरा तो 2 कमरों में बिठाया जा सकता है, एक नहीं होता है इंडिपेंडेंट हाउसेस में, कोई इतना बड़ा नहीं होगा, बिला यूनिवर्सिटी के करीब होगा ये वगैरह, वो कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ जो बात मैं तुम्हें जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इजराइल का सीधा साधा वाज़ेह मकसद सामने आ रहा है
کہ مسٹر نیتن از فار گریٹر اسرائیل. اور اس کے لیے وہ اسرائیل کی موجودہ جغرافیائی حدود کو ناکافی سمجھتا ہے. وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے. وہ اس کو بڑھانا اور اس پہ عمل پیرا ہے. اس پہ عمل پیرا ہے. کوئی اس کو نہیں روکے گا. اپیرنٹلی ابھی تو اس کو فی الحال اس کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. دیر ول بی نو ریئیکشن فرام عرب سائڈ یا قطر سائڈ کے بھائی مذمتی بیان ہو گئے. وہ تو بیان ہے نا. بس تو ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے نا. مذمت ہم بھی کریں گے ابھی. نہیں کر دی ہم نے کر دی. نہیں حکومت نہیں ایز اے قوم کریں گے جمعے کے خطبات میں. کرنا کرو. نعت نہیں پائی جا سکتی اسرائیل میں فی الحال تو ایسا نہ. چلیں جی لیٹس سی جی. میں انتہائی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو پلیز میری بات کو غلط نہ سمجھیں. چلیں جی. اسرائیل گنڈا گرد ملک تو میں سے کہتا ہی نہیں. اچھا اینی وے اپنا خیال ہے. اللہ حافظ.